Today once again we came with the revision of trigonometry chapter. Trigonometry. What is mean of trigonometry? First we'll in short and description I will give what is trigonometry. The word trigonometry derived Greek words tri means three, gon means side and metron means measure. Combination of three words derive trigonometry means measure of three sides. What? Measure of three sides. Right? Normal thing I want to share with you, just like if any girl is sitting downside and she is watching tall building. She is watching tall building, right? So one right angle will form. One right angle will form from bottom to top. So how can measure this length, this distance? For that we are using trigonometry. Next example I am giving to you. Someone is sitting in balcony and sitting downside, some river is flowing or anyone is standing, auto wala is going. If you want to, then once again one right angle is forming. What is forming? Right angle. Okay. So this right angle, how to find the distance? With the help of trigonometry. Okay. See, one triangle is there. In this triangle, standing line is known as perpendicular, sleeping line is known as base, and slanting line is known as hypotenuse. Okay, so triangle, three sides having three parts, just like perpendicular, standing line, sleeping line, and slanting line. Okay, standing line is known as perpendicular, sleeping line is known as base, and slanting line is known as hypotenuse. So today we will discuss the basic of trigonometry, how we can solve any sum with the help of formulas. Just like we are making any building, for that we need base. So today we will go with base. If base is very powerful, then you can solve any sum. Okay. Now I am giving you some very shortcut how to learn formula, like P B P H H B. Okay. Pandit Badri Prasad Harar Bole. Okay. So what is there? P, I am writing here sine, cos, tan, cosec, sec, and cot. How to use? Look here. If anyone tell find sine theta, find the trigonometry ratio of sine theta. Now how to find? Sine theta is equal to P by H. What? P by H. Cos theta is equal to B by H. Tan theta is equal to P by B. Cosec theta is equal to reciprocal. We count from here. H by P. H by P. Sec theta is equal to H by B. Cot theta is equal to B by P. Okay. So look here, formula is there. Pandit Badri Prasad Harar Bole. It will be very helpful to you for learn, right? Any trigonometry ratio you want to find in exam, you can make backside. Okay. You can make backside this formula and you can start. आप क्या कर सकते हो? एग्जाम में, बोर्ड में, लास्ट पेपर पे ड्राइंग बना लो एंड यू कैन रिमेंबर पंडित बद्री प्रसाद हरार बोले. अब साइन क्या होता है बच्चों? P by H, राइट? P का मतलब होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस. cos क्या होता है? B by H, B for base. ओके, बेस अपॉन हाइपोटेनस. tan क्या होता है? P by B, परपेंडिकुलर अपॉन बेस. cosec रेसिप्रोकल करना है साइन का, H by P, हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर. sec होता है आपका H by B and cot is B by B. So these are the formulas. Okay. Now one next formula is there. Okay fellows, understood? It is the base. Now we'll go with next formula. Okay student, now we'll proceed ahead. Next formulas. Very easy way we'll go. Formula इस तरह से है बच्चों, sin square theta plus cos square theta is equal to 1. Okay. sin square theta plus cos square theta is equal to 1. These formulas are used in sums. जो main sum होते हैं उसी के अंदर इसका यूज होगा, राइट? अब एक फॉर्मूला से तीन फॉर्मूला बनेंगे. sin square plus cos square is equal to 1 होता है बच्चों.
सो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। क्या करेंगे, साइड चेंज साइन चेंज। नेक्स्ट cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा। फार्मूला था sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर इज इक्वल टू 1, sin स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस cos स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा। ठीक है, सो आपने 1 में से कितने फार्मूला किए, 3 फार्मूला किए। नेक्स्ट फार्मूला देखो बच्चों, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। क्या फार्मूला है, sec स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर इज इक्वल टू 1। sec स्क्वायर सब्जेक्ट बनाओ, sec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, सो फ्रॉम 1 2 फार्मूला वी मेड। नेक्स्ट फार्मूला है बच्चों cos स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ओके, cos x का सब्जेक्ट बनाओ, cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा। राइट, अंडरस्टूड। सी हमने एक में से 3 बनाए, एक में से 2, एक में से 2, सो इट विल बी वेरी इजी फॉर लर्निंग। आपको याद करने में बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। नेक्स्ट फॉर्मूला tan थीटा इज इक्वल टू sin थीटा बाय cos थीटा। tan इज इक्वल टू sin बाय cos। बच्चों cot क्या है, cot है tan का रेसिप्रोकल, तो cot क्या होगा, cos बाय sin। क्या होगा बच्चों, cos थीटा बाय sin थीटा। राइट, लाइक जैसे मैंने आपको बोला रेसिप्रोकल है तो tan इज इक्वल टू 1 बाय cot थीटा। सो cot क्या होगा आपका 1 बाय tan थीटा। ठीक है, बिकॉज tan और cot एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। नेक्स्ट फॉर्मूला sin थीटा इज इक्वल टू 1 बाय cosec थीटा। sin क्या होगा आपका 1 बाय cosec थीटा, तो cosec क्या होगा 1 बाय sin थीटा। cosec होगा आपका 1 बाय sin थीटा। ठीक है, नेक्स्ट फॉर्मूला cos थीटा इज इक्वल टू 1 बाय sec थीटा। तो sec थीटा क्या होगा आपका 1 बाय cos थीटा। ठीक है, cos इज इक्वल टू 1 बाय sec, तो sec क्या होगा 1 बाय cos थीटा। नेक्स्ट फॉर्मूला है tan थीटा इंटू cot थीटा इज इक्वल टू आपका होगा 1। व्हाट, tan इंटू cot इज इक्वल टू 1, बिकॉज tan क्या होता है sin बाय cos और cot क्या होता है cos बाय sin। कटिंग विल बी 1 1। Once again देखो बच्चों, इट इज वेरी इजी, इट इज द फंडामेंटल ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर 1 होता है, sin स्क्वायर साइड चेंज साइन चेंज 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर होगा 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा, देन sec माइनस tan स्क्वायर इज इक्वल टू 1, sec स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, साइड चेंज साइन चेंज। नेक्स्ट cos स्क्वायर माइनस cot स्क्वायर इज इक्वल टू 1, cos स्क्वायर सब्जेक्ट बनाया 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा। नेक्स्ट फार्मूला है tan थीटा इज इक्वल टू sin बाय cos। tan एंड cot एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, तो cot क्या होगा cos बाय sin। सेम आई टोल्ड tan 1 बाय cot, सो cot 1 बाय tan। नेक्स्ट है sin इज इक्वल टू 1 बाय cosec, तो cosec इज इक्वल टू होगा 1 बाय sin। नेक्स्ट फेलोज देखो, cos इज इक्वल टू 1 बाय sec, तो sec क्या होगा आपका 1 बाय cos थीटा। नेक्स्ट फार्मूला है tan थीटा इनटू cot थीटा इज इक्वल टू 1। आई होप एवरीवन अंडरस्टूड। सो इसके बाद हम जाएंगे नेक्स्ट फार्मूला में। ओके फेलोज, नाउ न्यू फार्मूलास, the last formula of trigonometry which we use in 10th standard, changing the degree. Okay, sin 90 minus theta is equal to cos theta, cos 90 minus theta is equal to sin theta, and 90 minus theta is equal to cot theta, cot 90 minus theta is equal to tan theta, sec 90 minus theta is equal to cosec theta, cosec 90 minus theta is equal to sec theta. Okay, it is changing the degrees वाले सम हैं। Okay, mostly that all are complementary. ठीक है, साइन चेंज होता है cos में, cos होता है sin में, tan cot में, cot tan में, sec cosec में और cosec sec में। Just like I taught you the formula in the beginning only, उसी फॉर्मूला का हम यूज करेंगे। फॉर्मूला कौन सा था आपका, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, sin cos tan cosec sec and cot, राइट, ये फॉर्मूला था आपका। They are given sec is equal to 13 by 12. So क्या करेंगे, फर्स्ट यहाँ पे लिखो sec
थीटा इज इक्वल टू 13/12। नाउ देखो sec क्या होता है बच्चों, sec इज h by b। क्या होता है आपका h by b। यहां पे लिखो h by b। अब क्या करना है, आपको h is 13। नाउ फर्स्ट आप यहां पे लिखोगे इट इज p, इट इज b as I told you, इट इज h। h क्या है बच्चों 13, h is 13 और b क्या है आपका 12। आपने स्मॉल स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा पाइथागोरस थ्योरम, राइट? So we'll follow the Pythagoras theorem for finding third side. So what is Pythagoras theorem? मैं आपको बता रहा हूं, अगर आपको ना पता हो तो by using Pythagoras theorem। अब बच्चों Pythagoras theorem क्या है? परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनस स्क्वायर। आपको फाइंड क्या करना है इसके अंदर, पहले देखो आपको फाइंड करना है परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर को सब्जेक्ट बना लो। ओके, सो परपेंडिकुलर इज इक्वल टू h स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अब h क्या है आपका, देखो h इज 13 स्क्वायर, h क्या है आपका 13 स्क्वायर, b है आपका 12 स्क्वायर, राइट? 13 का स्क्वायर क्या होता है आपको पता होना चाहिए, 169। 12 का होता है 144, तो क्या होगा ये बच्चों 25। क्या है आपका p स्क्वायर इज इक्वल टू 25। क्या है आपका p स्क्वायर इज इक्वल टू 25। p नहीं आया, हाँ, p स्क्वायर इज इक्वल टू 25। तो p क्या होगा आपका स्क्वायर रूट 25। दैट मींस p इज इक्वल टू 5। p कितना है आपका 5। ओके, सो हमने पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से आपका परपेंडिकुलर फाइंड किया। अभी सम कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी सम हाफ हुआ है। हाफ बोले तो क्या हुआ है, अभी एक घर बनाया है, उसकी दीवार रेडी हुई है, अब इसमें प्लास्टर और कलर करना बाकी है, फर्नीचर का सामान बाद में आएगा। ठीक है, तो हम करते हैं, अब आगे स्टार्ट करते हैं, राइट? सेकेंड और सारे के सारे रेशियो फाइंड करने। तो फर्स्ट आपके पास क्या है, पहले यहाँ पे साइड में हम लिख लेते हैं। p आपके पास है 5, b आपके पास है 12 और h आपके पास है 13। ठीक है, अब हम सारे के सारे रेशियो फाइंड करेंगे। तो फर्स्ट हम जाते हैं किसके साथ में, साइन के साथ में। साइन थीटा आपको पता है क्या होता है, p by h। क्या होता है बच्चों, p by h। व्हाट इज p? p is 5 और h क्या है आपका 13। नेक्स्ट करते हैं cos थीटा। cos क्या होता है बच्चों आपका, देख लो b by h, b by h। b क्या है आपका 12 और h क्या है आपका 13। नेक्स्ट करते हैं tan थीटा। tan क्या है देख लो आप, p by b। p is what? p क्या है बच्चों, p is 5 and b is what? 12। ये हुआ। अब फाइंड करते हैं cot थीटा। cot क्या होता है, b by p। क्या होता है, b by p। b क्या है बच्चों आपका, b is 12 and p is 5। 12 and 5। नेक्स्ट फाइंड करेंगे sec थीटा। sec देख लो क्या होता है आपका h by b। h by b। h क्या है बच्चों आपका 13 और b क्या है आपका 12। 13 by 12। नेक्स्ट करेंगे cosec थीटा। cosec देख लो बच्चों क्या है, h by p। h by p। h क्या है आपका 13 और p क्या है आपका 5। ओके, सो आपने देखा हमने सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फाइंड कर लिए। फॉर दैट हमने क्या किया, पहले व्हाट वी डन, फर्स्ट इन क्वेश्चन दैट गिवन sec थीटा 13/12। sec थीटा क्या है आपका 13/12 और सारे के सारे आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फाइंड करना है। तो फर्स्ट प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए आपकी, फर्स्ट आपको एक ट्रायंगल ड्रॉ करना है। ठीक है, एक ट्रायंगल ड्रॉ किया, नॉर्मल सी बात है, ट्रायंगल ही ड्रॉ करेंगे। ट्रायंगल ड्रॉ करने के बाद में आप क्या करोगे, sec का वैल्यू क्या होता है h by b। पहले फॉर्मूला लिख लो, पंडित बद्री प्रसाद हरर बोले। देन sec फाइंड करो, sec क्या होता है आपका h by b होता है, समझे? तो h is 13, h की जगह 13 रखो और b is 12 रखा। नाउ वन फर्स्ट क्वेरी आती है। ठीक है, फर्स्ट क्वेरी क्या है आपकी, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर है नहीं आपके पास, अब क्या करोगे, अपने घर से तो ला नहीं सकते, आप जेब में से भी निकाल नहीं सकते हो, तो इसका सीधा सॉल्यूशन, इसको फाइंड करना पड़ेगा। फाइंड करने के लिए क्या करना है, प्लस माइनस तो करना नहीं, उसके लिए एक मेथड बनाई गई, इसको बोलते हैं पाइथागोरस थ्योरम। एक महान संत थे पाइथागोरस, उनके नाम से थियरी है। आप भी कुछ अच्छा करोगे तो आपके नाम से भी कुछ हो सकता है। तो पाइथागोरस थ्योरम का हमने यूज किया। पाइथागोरस थ्योरम ये होता है बच्चों, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनस स्क्वायर। परपेंडिकुलर बेस
हाइपोटेन्यूज। ठीक है, अब आपको जो फाइंड करना है, जो मींस इसमें फाइंड करना P। ओके, सो P को सब्जेक्ट बना लो, तो P इज इक्वल टू h स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, साइड चेंज साइन चेंज। अब h आपका 13 है, 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर, 13 स्क्वायर होता है 169 एंड 12 स्क्वायर इज 144, सो 169 माइनस 144 होगा 25। अब p स्क्वायर 25 है, आपको p फाइंड करना है तो स्क्वायर रूट में जाएगा, तो p स्क्वायर रूट होगा 25, तो इसका स्क्वायर रूट रहेगा आपका 5। आपको p मिल गया। अब मेन चीज है सारे के सारे रेशियो फाइंड करना है। रेशियो में sin थीटा, cos थीटा, sec दिया हुआ है, tan है, cot है, cosec है, राइट, ये सब फाइंड करना है। तो पहले आप यहाँ पे लिख लो p, b और h का वैल्यू। अब अपनी जर्नी स्टार्ट करो फाइंड करने की। sin थीटा जैसे होता है p बाय h, यहाँ से हमने लिखा है, आपको ये लर्न करना जरूरी है। नाउ p क्या है आपका 5, h क्या है आपका 13, 5 बाय 13 हो गया। cos क्या है आपका b बाय h, b क्या है आपका 12, 12 बाय 13, tan p बाय b, pi बाय 12। सेम थिंग cot ले लो, cot है b बाय p, तो 12 बाय 5 हमने वैल्यू पहले यहाँ पे लिख ली है, तो थोड़ा इजी रहेगा। sec होता है आपका h बाय b, 13 बाय 12। एंड लास्ट नॉट लीस्ट, जर्नी की लास्ट ईंट लगा रहे हैं हम घर पूरा करने के लिए, वो है cosec थीटा, h बाय p जो है 13 बाय 5। आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस सम, सबको पता चला होगा बहुत ही अच्छी तरह से। इट इज द बेसिक, सारा का सारा ट्रिग्नोमेट्री रेशियो इसी से फाइंड होता है, खाली फॉर्मूला लर्न करना है। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ओके स्टूडेंट, आई होप यू लाइक दिस वीडियो। आगे भी हम इस तरह से वीडियो लाते रहेंगे आपके लिए और अपलोड करते रहेंगे। ठीक है, रेगुलर वीडियो पाने के लिए आप ऐप मींस हमारा जो यूट्यूब चैनल लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और डिस्क्रिप्शन में हमारा ऐप दिया हुआ है, इफ यू क्लिक ऑन दैट तो आप रेगुलर हमारे लेक्चर पे अटेंड कर पाएंगे। थैंक यू वेरी मच।